Now, welcome to the class. Good morning, everyone. Today, I am going to start a chapter which is rotational motion. Rotational motion. In today's session, I am trying to cover the whole concept of center of mass. Center of mass. So our today's lecture is mostly depend on the center of mass. So today I will cover the center of mass. Start from this and you can write it center of. Before coming to the center of mass, let's having a brief introduction of rotational motion. What is rotational motion? As the name suggests, when a body revolves from a common axis. When a body revolves from a common axis. Okay, revolve around a common axis. This is rotational motion. But there is something which also comes in your mind whenever we start the kinematics portion. There also I did a topic that was the circular motion. It's also the common thing. Circular motion is also a common thing as rotational motion. There also a center and a body revolves around the center. But why we need to study the separate topic of rotational motion? The answer of this is what I also told in kinematics, as you know as well. In kinematics, introduction part of the kinematics, there is a concept of point mass. So whenever we deal with the problems, we try to convert the things in a smaller elementary part and solve the physics for the elementary part and then try to explain it with the bigger bodies. So the difference between circular motion and rotational motion is hidden behind the concept of point mass. I expect you know the concept of point mass. Okay? So यहाँ पर होता क्या है? जब हम सर्कुलर मोशन कर रहे थे at that time we deal with a point mass, means we treat a body which revolves around a point. We treat a system which revolves around a point, but that system is considered as a point mass. So you can say that not a system, you can say that when a particle revolves around a common center with some angular velocity, we call it circular motion. But to explain the rotational motion, to understand the rotational motion, we have to understand the concept of system of particles. What is system of particle? जब भी हम सर्कुलर मोशन की बात करते थे वहां पर तो हमने पॉइंट मास ले लिया था, बट इन फिजिक्स पॉइंट मास जैसा कुछ होता नहीं. ओके, सो जब हम फिजिक्स में प्रॉब्लम्स को डील करते हैं, मैकेनिक्स में प्रॉब्लम्स को डील करते हैं, तो वी मोस्ट प्रोबेबली वी डील विद द बिगर साइज. वी डील विद द combination of point masses, combination of point particles. Okay, so system of particle is what? When we took a combination of particles, just like many duster here. Okay, this is my duster. Here there are many points. One point is at this corner, one point is at this corner, one point is at this corner, other is one here. Everywhere there is some points. So if I try to rotate this duster, like this, what will happen? You can see
can see that this part of the duster make a circular motion. This point make a circular motion here. This point make a circular motion here. So each point will make their own circle. Each particle will make their own circle. So what will we do? We just took different points of a body and make their own circles around a single point. तो जितने भी बॉडीज, जितने भी पार्टिकल यहाँ पे सर्कल बना रहे हैं, उनका एक कॉमन सेंटर होगा. जैसे ये ऊपर वाला पार्टिकल, इसका सेंटर कुछ यहाँ पर लाई किया, ये वाला पार्टिकल यहाँ पे घूमा, इसका सेंटर कुछ यहाँ पे लाई किया, मिडिल पार्टिकल यहाँ पे रिवॉल्व किया, उसका सेंटर यहाँ पे लाई किया. तो देयर आर 3 सेंटर्स हियर. सो व्हाट वी डू, वी जस्ट मैच ऑल दीज 3 centers. So when we match all these 3 centers, what we get? We get a locus of point. This locus of point will tell you about the axis. It makes about the axis. ठीक है. So this type of motion, जब बहुत सारे पार्टिकल, जब बहुत सारे सर्कुलर मोशन होते रहते हैं, बहुत सारे सर्कुलर मोशन होते हैं किसी एक बॉडी पे, उसको हम बोलते हैं क्या? रोटेशनल मोशन. ठीक है. तो अब हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल की बात कर रहे थे. तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल की बात करते हुए हम बोलेंगे कि जब हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं किसी बॉडी के और उनके बीच के डिस्टेंसेस हमेशा सेम रहते हैं, तब हम बोलेंगे कि वो पार्टिकल, वो सिस्टम जो होता है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल जो होता है, उसको क्या बोला जाता है? वी कॉल इट बॉडी. जो बॉडी होता है, हम बहुत सारे पार्टिकल्स लेते हैं, उनके बीच के सिस्टम्स को ऐसे डिफाइन करते हैं जैसे कि उनके बीच के डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहे. सो हाउ कैन यू डिफाइन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल? सिस्टम ऑफ पार्टिकल कैन बी डिफाइंड एज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन 2 particles of a body remains constant for every time. We call that body is a system of particles. So in other words, you can say that a system of particle is defined as when the difference between 2 particles, when the distance between 2 particles is constant always. Okay. One more thing, whenever you try, another thing to define the system of particle that you should know is what? अगर मैं इसको रोटेट कराऊँ ऐसे आगे की तरफ, if I want to rotate, if I want to move this duster in forward direction, what will happen? ये ऐसे सामने की तरफ मूव करता चला जाएगा. इसके साथ क्या होगा कि जो ये पार्टिकल इसके साथ मूव कर रहा है, इसके पीछे वाला भी पार्टिकल इसको फॉलो करेगा ऐसे. ठीक है. बट जैसे ये आगे वाला पार्टिकल मूव करेगा, पीछे वाला भी इसके साथ में मूव करता चला जाएगा. दैट मीन्स व्हाट? द डिस्टेंस बिटवीन दिस point and this point will always remains constant no matter whether it is moving or in stationary condition. तो जैसे ही आप एक पॉइंट को मूव कराओगे, बाकी सारे पॉइंट उसके साथ में मूव करना स्टार्ट कर देंगे. तो जब इस तरह का सिस्टम बनता है, वी कॉल दैट दिस सिस्टम इज नोन एज सिस्टम ऑफ पार्टिकल. Okay, so this is the system of particle, but there is a problem. What is the problem there? Problem is that, चलो इसको मैंने सिस्टम ऑफ पार्टिकल बोल दिया, एंड इसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल को हम बोलते हैं बॉडी. So you can define system of particle as the difference or the distance between 2 particles is constant. You can say that the distance, what is the definition for that? The distance between 2 particles is constant and they move with same velocity. Okay, they move with the same velocity. But यहाँ पे एक प्रॉब्लम है. You can ask question that sir what if we take a rubber band? अगर मैं रबर बैंड चूज कर लूँ तो क्या होगा?
तो रबर बैंड को जैसे ही आप स्ट्रेच करते हो बेटा तो क्या होता है, उसका एक पोजीशन तो आगे की तरफ मूव करता जा रहा है बट एक पॉइंट वहाँ पे फिक्स है। ठीक है, इसको आपने फिक्स कर दिया, इसको मैं आगे की तरफ खींचता हूँ तो वो वहाँ पे स्ट्रेचेबल होते हैं, तो आगे की तरफ पॉइंट उसके मूव करते चले जाते हैं। तो यहाँ पे तो डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट फिक्स नहीं रहा। कब फिक्स नहीं रहा, जब हमने उसमें एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई किया, जब हमने उसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया। तो यहाँ पर दो पार्ट्स बन जाते हैं, एक होता है नॉर्मल बॉडी, जैसे ही आप इस पर फोर्स अप्लाई करते हो, व्हेनेवर यू अप्लाई फोर्स on system of particle on a normal body, it behaves, there behaves changes like what, like a rubber band। जैसे rubber band में क्या होता है, there differences between the distance between the particle will get change। तो एक होता यहाँ पे हो जाएगा जिसके distances चेंज हो जाएंगे, जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे तो उनके डिस्टेंस अगर चेंज हो जाएंगे, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल बॉडी, नॉर्मल बॉडी। लेकिन जैसे ही, जैसे मैं इस टेस्टर पे कितना भी फोर्स अप्लाई करूँ इसको खींचने के लिए, तो जैसे इसको मैं इस साइड में पुल करूंगा, खींचूंगा, क्या होगा, इसके साथ में पीछे वाला पोर्शन भी इसके साथ में मूव कर जाएगा। देयर इज नथिंग लाइक स्ट्रेचेबल थिंग्स। ओके, सो द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट व्हाटएवर यू अप्लाई द फोर्स। द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट व्हाटएवर यू अप्लाई द फोर्स। देन दैट सिस्टम ऑफ पार्टिकल नोन एज रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी, तो इस केस में क्या होता है, डिस्टेंस विल चेंज, डिस्टेंस चेंज when you apply the external force, and for this case your distance will remain constant। Got it? So this is all about the system of particle and rigid body। So how you can define the rigid body? Rigid body is defined as a system of particle on that when we apply some external force, their positions, means the distance between two particles will never change। Got it? So this type of system of particle known as a rigid body। Got it? So अब हम यहाँ पर rigid body के बारे में ही बात करेंगे। Okay? So let's start with our new topic, next step, that is axis of rotation। Before that I just want to tell you what is rotational motion। So to define the rotational motion, what you need, सर्कुलर मोशन हो गया बेटा, सिंगल पॉइंट मास के लिए होता है, बट रोटेशनल मोशन क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जस्ट किसी ऐसे रिवॉल्व आप करा रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारे सर्कल बन रहे हैं, एक इसका ये वाला पॉइंट सर्कल क्रिएट कर रहा है, एक इसका ये वाला पॉइंट सर्कल क्रिएट कर रहा है, एक मिडिल पॉइंट सर्कल क्रिएट कर रहा है, ईच पॉइंट मेक्स देयर ओन सर्कल। तो सारे सर्कल्स का हम क्या करेंगे, एवरी सर्कल्स को हम मिला देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे सर्कल्स बनते हैं, तो एक कॉमन एक्सिस के अराउंड सारे सर्कल्स यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है, इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन। सो व्हाट इज रोटेशनल मोशन, यू कैन राइट इट लाइक व्हेन all particles of a body revolves around a common axis, with a constant angular momentum, constant angular velocity, not momentum, angular velocity, we call that this body performs rotational ठीक है, तो जब किसी एक कॉमन एक्सिस के अराउंड सारे पार्टिकल्स किसी एक रिवॉल्व करते हैं विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, हम उसको बोलते हैं क्या, रोटेशनल मोशन। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द रोटेशनल मोशन। नाउ कम टू द व्हाट इज कॉमन एक्सिस। व्हाट इज कॉमन एक्सिस?
कॉमन एक्सिस क्या होता है बेटा? कॉमन एक्सिस जो इसमें बात किया गया है इसी को हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन ये क्या होता है? जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल डस्टर का लिया था, इसको इस तरह से मैंने रिवॉल्व कर रहा है, इसको इस तरह से मैंने रिवॉल्व कर, ये इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है। मतलब देखो इसका यहाँ पे एक सर्कल बन रहा है, इसका कुछ सेंटर इस पॉइंट पे होगा, तो ये मिडल पॉइंट है, इसका कुछ सेंटर यहाँ होगा, जो ये पॉइंट रिवॉल्व कर रहा है इसका कुछ सेंटर यहाँ पर होगा। तीनों सेंटर्स को हमको मिला देना है, तीनों सेंटर्स को हमको मैच कर देना है, फिर हमको एक लीनियर लोकस मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं जस्ट ड्रॉ करता हूँ। वी हैव 3 points, one is revolving here, one is revolving here, one is revolving here with a same angular velocity. All the particles revolving with the same angular velocity, and we have to just match these centers. So whenever you match these centers, what you will get? You will get a straight line. You will get a straight line. So with this around this straight line, all particles will revolve with a constant angular velocity. This straight line is known as axis of rotation. Axis of rotation. So to define the axis of rotation, you can define it. It is the locus of the centers. Locus of the centers of all the particles performing circular motion or performing rotational motion for a system of particles. So this is your axis of rotation. Okay, axis of rotation काफी कई टाइप्स के होते हैं, तो इसको एग्जाम में मीन्स जब whenever you get the problems about the axis of rotation, the best thing that you should know that how to do the nomenclature. axis of rotation में आपको nomenclature करने आना चाहिए, और दूसरी चीज अगर वो nomenclature करके दे दिए हैं तो उसको आपको समझना आना चाहिए। ओके, so that's you need to understand nomenclature. मीन्स जैसे उन्होंने कुछ कहा उसका पिक्चर आपके माइंड में बन जाना चाहिए। सो वन यू शुड नो टू फ्रेम द वर्ड्स फ्रॉम अ पिक्चर, another is what you should frame the picture from the body. Got it? So let's see, there are some various types of axis of rotation. First is what, whenever we do a circular motion and a particle revolves around a common center, we call this axis is axis passing through center. Axis passing through the center. Got it? So यहाँ पे इस तरह से मूव करेगा, it is moving anti-clockwise direction. Got it? One more thing is what, axis of rotation is always perpendicular to the plane of rotation. What is the plane of rotation? जैसे ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, या ये ऐसे मूव कर रहा है इस तरह से, ठीक है। अब जब ये पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हुआ, एक सर्कल यहाँ बना, एक सर्कल इस साइड में बना, एक सर्कल इस साइड में बना। इधर ये वाला पार्टिकल एक सर्कल यहाँ बनाया और ये वाला पार्टिकल यहाँ बनाया, तो इनके सेंटर्स को हमको मिला देना है। सो व्हेनेवर वी मैच दिस सेंटर्स, वी गॉट अ पॉइंट, वी गॉट अ लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ द सेंटर्स। सो दिस लाइन इज योर एक्सिस। तो इसके अराउंड पार्टिकल्स इस तरह से सर्कुलर मोशन करते हुए मूव कर रहे हैं। गॉट इट? अब देखो बेटा यहाँ पे कि इसमें जो सर्कल बन रहा है कुछ ऐसे बन रहा है, इस तरह से सर्कल ऐसे बन रहा है। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, ये मतलब आपका सर्कल कुछ इस तरह से बन रहा है, इस तरह से घूम रहा है ऐसे, और एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है आपका, इस तरह से सीधा इस सर्कल को इंटरसेक्ट करते हुए बाहर की तरफ निकल रहा है फ्रॉम द सेंटर्स। इसको आप क्या बोलोगे, हमेशा आप देखेंगे कि एक्सिस ऑफ रोटेशन जो रहेगा, हमेशा जो भी सर्कुलर मोशन होगा, जो भी रोटेशनल मोशन होगा, उस प्लेन के नॉर्मल होगा, परपेंडिकुलरली आउटसाइड होगा, इनसाइड होगा, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ रोटेशन। गॉट इट? सो वो हम कैसे बताएंगे कि डायरेक्शन क्या होगा, कि आउटसाइड होगा, इनसाइड होगा। वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ
क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स। ठीक है, ए क्रॉस बी करेंगे मीन्स यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ राइट हैंड स्क्रू रूल। सो एज यू डिड इन काइनेमेटिक्स व्हेन यू डू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स, सो वहाँ से आपको क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है और आपको डायरेक्शन बता देना है कि किस डायरेक्शन में एक्सिस ऑफ रोटेशन, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। बट वन थिंग इज कॉमन दैट इट विल ऑलवेज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। ओके, द वन मोर सम अदर टाइप्स ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन आर व्हाट, इसको हम बोलेंगे एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड द अदर थिंग इज व्हाट, जैसे कोई मैंने एक डिस्क ले लिया, जैसे आप दरवाजा ये डोर का देखो, डोर ये आपका यहाँ पे हैंग हुआ है तो ये इसके अराउंड ऐसे मूव करता है, ये इसके अराउंड ऐसे मूव करता है। तो जो आपकी कॉमन डिस्क होती है, जैसे मैंने डिस्क ले लिया, वो आपका इसके अराउंड इस तरह से कुछ इसके चारों तरफ मूव कर रही है। तो इस तरह ये टाइप का एक्सिस बनाएंगे हम, दिस एक्सिस इज पासिंग थ्रू द व्हाट, दिस इज व्हाट पासिंग थ्रू द टेंजेंट, इज इट इज एज अ टेंजेंट ऑफ द डिस्क। ठीक है, आप टेंजेंट बोल सकते हो ना, तो दिस एक्सिस इज पासिंग थ्रू द टेंजेंट, और इसको हम बोलेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू व्हाट, सर्कमफ्रेंस, पासिंग थ्रू द सर्कमफ्रेंस। ठीक है, कुछ और होते हैं, जैसे मैं एक सर्कल इस तरह से बना दिया, दिस इज योर सेंटर, और ये कुछ ऐसे मूव कर रहा है, कोई से एक रिंग होता है तो रिंग ऐसे घूमता नहीं है कॉमन एक्सिस के अराउंड, तो ये जो एक्सिस बनेगी इस टाइप की, इसको हम बोलेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू डायमीटर। ठीक है, पासिंग थ्रू सेंटर, पासिंग थ्रू द सर्कमफरेंस, पासिंग थ्रू द डायमीटर, और भी बहुत सारे आएंगे। जैसे रेक्टेंगुलर लैमिना जो होता है, रेक्टेंगुलर लैमिना आप बनाएंगे, उस केस में क्या होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, कोई पॉइंट यहाँ पे होगा, कैसे निकालते हैं, बात करते हैं उसके बारे में कि हम कैसे एक्सिस ऑफ रोटेशन फाइंड आउट करते हैं। वो डिपेंड करेगा किसके अराउंड आपका पार्टिकल रोटेशनल मोशन कर रहा है। ठीक है, आपको अलग अलग सेंटर्स फाइंड आउट करने हैं, उन सेंटर्स को मिला देना है और वो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन बन जाएंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। नाउ कम टू द सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास क्या होता है, व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास? Center of mass of a body is defined as where all the masses of the body is constant. You can define it as where all the masses of the body is constant. मतलब क्या होता है, जैसे अगर आपने यहाँ पे इस डस्टर को पिवोट किया तो ये इस डायरेक्शन में गिर जाएगा, ऐसे इधर घूम जाएगा, यहाँ पे इसको पिवोट किया तो इधर घूम जाएगा ऐसे। लेकिन अगर आपने इस कहीं सेंटर पे कुछ यहाँ पर पिवोट किया तो एकदम कांस्टेंट स्थिर हो गया ऐसे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये बैलेंस कंडीशन में आ गया, मतलब इसके जो मासेस लग रहे हैं, यहाँ पे जो मास लग रहा है, इधर मास लग रहा है, यहाँ मास लग रहा है, सारे किसी एक पॉइंट पे बैलेंस हो गए, सारे मास इसके किसी एक पॉइंट पे आ गए और ये पार्टिकल बैलेंस कर गया। और जब आपका सेंटर थोड़ा सा इधर होगा तो ये नीचे की तरफ गिर रहा था इस तरह से, तो इसका मतलब क्या था कि इसके मास नीचे की तरफ जा रहे थे, दूर जा रहे थे, अर्थ की तरफ इस तरह से गिर रहे थे। इधर किया तो आपने इसके मास इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहे थे। ठीक है, तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं था, इसके मास रैंडम डिस्ट्रीब्यूट थे। बट जैसे ही आपने इसको सेंटर पे लगाया, इसका मास क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, और इस पॉइंट को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस डस्टर, दिस बॉडी। ओके, तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, जहाँ पे सारे मासेस कांस्टेंट रहते हैं। वन मोर थिंग दैट आप इसको डिफाइन करने के लिए बोल सकते हो कि जैसे आपने इसको यहाँ फोर्स लगाया 5 न्यूटन का, और ऐसे इसको पकड़ा हुआ है जोर से, तो यहाँ कुछ फोर्सेस लगाए और कुछ यहाँ लगाए, यहाँ लगाए, जैसे गांव इस तरह से। ठीक है, अलग अलग पिलर्स लगाते हैं जैसे रूफ्स को स्टेबल करने के लिए, एक पिलर यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, हर जगह क्या होता है, फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। ठीक है, यहाँ पे 5 न्यूटन लग रहा है, यहाँ पे 5 न्यूटन लगा, यहाँ पे 5 न्यूटन लगा, सो ओवरऑल फोर्सेस कितने लग रहे हैं, 15 न्यूटन। तो अलग अलग पॉइंट्स पे लग रहे हैं और आपका ये जो ब्रिज है या ये जो रूफ है ये बैलेंस कंडीशन में है। बट अब क्या होता है कि ये तीनों पॉइंट्स को
हम किसी जो 5 न्यूटन के अलग अलग फोर्सेस लग रहे थे उनको कंस्ट्रेंट करके किसी एक पॉइंट मिडल पॉइंट पे हमने एक साथ 15 न्यूटन का फोर्स लगाया और यहाँ पर हमको पिलर बनाने की नीड नहीं पड़ी और ये रूफ आपका बैलेंस हो गया। एक पिलर पे आपका रूफ बैलेंस हो गया। मतलब क्या हुआ कि जितने भी सारे फोर्सेस हम अलग अलग जगह पे लगा रहे थे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स पे लगा रहे थे, स्प्लिट करके लगा रहे थे, अब क्या किया हमने किसी एक पॉइंट पे सारे फोर्सेस को लगा दिया और हमारी बॉडी स्टेबल हो गई, हमारी बॉडी स्टेबल हो गई। ठीक है, तो ऐसे भी हम सेंटर ऑफ मास को बता सकते हैं। तो सेंटर ऑफ मास को डिफाइन करने के लिए एक चीज और आप बोल सकते हो, if force is applied on different parts of the body, if you apply different forces on different parts of the body and on the center of mass, what you did on the center of mass, whenever you apply a common force, there is some of the forces on a single part on the center of mass on a single part, then all the body is balanced on that part and that point or that part is known as the center of mass of the body। ठीक है, तो आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जब बहुत सारे फोर्सेस को किसी एक फोर्सेस पे एक पॉइंट पे हम बहुत सारे फोर्सेस को लगाएंगे सबको सम करके, तो वो पॉइंट हमारा क्या हो जाता है, वो पॉइंट हमारा हो जाता है सेंटर ऑफ मास। ओके, तो ये हो गया आपका दो तरीका बताने का। एक आप ऐसे बता सकते हो जहाँ पे सारे मासेस कांस्टेंट हैं, और दूसरा तरीका आप बता सकते हो जहाँ पर ऑल द फोर्सेस प्रोवाइड्स सेम इफेक्ट as it provides on the different parts of the body। ठीक है, जब इसको आप डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी पे लगाते हो तो जो इफेक्ट बॉडी पे लगाते हैं सारे फोर्स मिलके, सेंटर ऑफ मास पे अगर वो फोर्स लगा दोगे तो वो सारे इफेक्ट सेम होंगे। ठीक है, तो दिस इज व्हाट द सेंटर ऑफ मास इज डिफाइंड। द नेक्स्ट वन इज व्हाट, हाउ टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास को कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले मैं बताता हूँ प्रैक्टिकल मेथड। इसके प्रैक्टिकल मेथड्स होते हैं। तो प्रैक्टिकल मेथड सबसे इजी होता है बताने के लिए कैसे निकालते हैं प्रैक्टिकल मेथड। So what are the practical methods? ठीक है, so practical methods जो होते हैं बेटा हमारे, वो किस तरह से आप बताएंगे। आप क्या करेंगे, जो कॉलेज लैब रहती है वहाँ पे हम इसको फाइंड आउट करते हैं। फॉर देयर वी हैव टू जस्ट हैंग द सिस्टम, वी हैव टू जस्ट हैंग द सिस्टम फॉर अ पॉइंट, फ्रॉम अ पॉइंट। जैसे कोई एक पॉइंट लिया, वहाँ से सिस्टम को आपने स्ट्रिंग के थ्रू इस पॉइंट पे इसको क्लिक किया, वैसे हैंग कर दिया इसको, और ये कुछ इस तरह से हैंग हुआ। ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट वेरियस शेप्स के बॉडीज हो सकती हैं। जैसे हमारे पास कोई इस तरह की शेप की बॉडी है और इसका हमको सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले इसके एक एंड को पकड़ेंगे और किसी एक जगह पे इसको हैंग कर देंगे। तो सारे मास इसको कहाँ, जैसे आपने पढ़ा है वेट कहाँ काम करता है बेटा, वेट विल ऑलवेज वर्किंग डाउनवर्ड, तो योर वेट विल वर्क ऑन द डाउनवर्ड। तो एक लाइन आप सीधा खींचोगे जो इसके वेट को मिलाता हो, ऐसे जो इसके वेट को मिलाता हो। एक लाइन आपकी ये बन गई। ना आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा रोटेट करना है और इसको आपको फिर से, जैसे मैंने ये पॉइंट चूज किया तो आपको इसको कुछ ऐसे बनाना है, कुछ ये आपने यहाँ से इसको हैंग किया, यहाँ से इसको हैंग किया, ये कुछ इस तरह से स्टेबल कंडीशन में आया। अब यहाँ पे वेट कैसे काम करेगा, वेट वर्क दिस में, हमेशा ये डाउनवर्ड वेट काम करता है, तो यहाँ पे वेट डाउनवर्ड काम करेगा। ऑलरेडी आपने पहले से ही एक लाइन बना रखी है, कौन सी लाइन, एक्स डैश। ठीक है, दिस इज योर वाई डैश। एक्स डैश कैसे की बेटा, इस पॉइंट से इस पॉइंट, so we have to just draw x dash. So x dash and y dash are cutting the particle on this point. ठीक है, किसी एक पॉइंट पे कट करेंगी एंड दिस इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट इज नोन एज द सेंटर ऑफ मास। इस तरह से किसी भी पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास निकालते हैं इन लैबोरेटरी। गॉट इट? अब जब किसी भी शेप का होगा आप यहाँ से इस चीज को निकाल सकते हो। बट व्हाट इज द कैलकुलेटिव मेथड? तो कैलकुलेटिव मेथड में
जो हमारे कैलकुलेटिव मेथड होते हैं इसमें क्या क्या है। कैलकुलेटिव मेथड की बात करेंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे कि कुछ रेगुलर शेप्स होते हैं। तो रेगुलर शेप्स के सेंटर ऑफ मास हमको पता होंगे। रेगुलर शेप्स होते हैं जैसे रेगुलर शेप कौन से, जैसे सिमेट्रिकल शेप। सिमेट्रिकल शेप का मतलब क्या हुआ, जैसे बेटा कोई एक कॉमन पॉइंट ले लिया, उसके दोनों साइड उसका शेप कॉमन हो, उसका शेप सेम। जैसे कोई एक सर्कल ले लिया, उसको बीच से कट कर दिया तो उसका ऊपर वाला है नीचे, टॉप एंड बॉटम दोनों पोर्शन आपके क्या हो, सेम स्ट्रक्चर के हों, सेम फिगर को, दोनों में सिमिलरिटी हो, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल इमेज। तो देखो बेटा क्या होता है, सबसे पहले हम सर्कल ले लेते हैं। सर्कल की केस में सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, आप सबको पता है, इट विल ऑलवेज लाई ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल में क्या कहाँ पे लाई करेगा, सेंटर ऑफ मास लाई ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, देन वी हैव व्हाट, वी हैव रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में कैसे सेंटर ऑफ मास निकालते हैं बेटा, दिस इज आवर रेक्टेंगल। रेक्टेंगुलर शेप जो होते हैं, और इसमें स्क्वायर भी हो सकते हैं, इसमें अपने पैरेललोग्राम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के जो शेप होते हैं, इसमें कैसे सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, वी हैव टू जस्ट ड्रॉ द डायगोनल्स, एंड जो डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, ये होता है आपका सेंटर ऑफ मास। ये आपका क्या होता है, सेंटर ऑफ मास इन केस ऑफ रेक्टेंगल। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं कोन की। फॉर ए केस वी हैव अ कोन। कोन की केस में क्या होता है बेटा, इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है, अगर इसकी हाइट h है, कहाँ से, इसके बॉटम से हाइट h है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास लाई करेगा वो बॉटम से 1/3, मींस इफ हाइट इज h, देन सेंटर ऑफ मास विल लाई h/3 डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम, and remaining 2h/3 from the vertices, 2h/3 distance from the vertices। सेंटर ऑफ मास कहाँ, बॉटम से h/3 डिस्टेंस पे होगा और वर्टिसेस से 2h/3 डिस्टेंस पे लाई करेगा। किस केस में बेटा, कोन के, सॉलिड कोन के केस में। ओके, तो आपका सेंटर सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, कोन हो गया। इज देयर एनी शेपलेट्स, देयर इज ट्रायंगल। So for in the case of triangle, how you can find out the center of mass? इसके लिए क्या करना होगा, you have to find out the centroid of the triangle। तो centroid find out करने के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ से एक लाइन खींचते हैं, जो सामने वाली लाइंस को हाफ पे कट करते हैं, and from here you have to do the same thing, and from here you should do the same thing। So ये पॉइंट्स को हाफ पे कट करेंगे, और जो ये पॉइंट होगा ये सेंट्रॉइड होगा, दिस इज द सेंट्रॉइड, and this centroid is the center of mass in case of triangle। So whenever you have triangle, centroid is your center of mass. Whenever you have rectangle, you have to draw the diagonals, and this type intersection point of the diagonal is your center of mass। Whenever you have a cone, it is of 1/3 distance from the bottom, and for the circle it is at the center। These are some definite shapes। Okay, अब हम बात करेंगे बेटा इस चीज़ को, इन थिंग्स को, ये जो सिमेट्रिकल शेप्स होते हैं इनको आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम कुछ बात करते हैं यहाँ पर कुछ और भी पार्ट्स के कैलकुलेटिव मेथड्स के, हम कैसे सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। कुछ मैथमेटिकल मेथड्स हैं, मैथमेटिकल वे हैं, जिसके हेल्प से आप सेंटर ऑफ मास किसी भी पार्टिकल का, किसी भी बॉडी का इजीली निकाल सकते हो। सो जो कैलकुलेटिव मेथड होता है उसको जानने के पहले हमको एक टॉपिक चाहिए पढ़ना पड़ेगा, दैट इज मोमेंट। वी शुड नो अबाउट द थिंग व्हाट, मोमेंट। मोमेंट क्या होता है बेटा, जैसे आपके पास कोई पार्टिकल, कोई रॉड है, आपने यहाँ पे एक मास अटैच किया, यहाँ पे मास अटैच किया, ठीक है। तो जिधर मास ज़्यादा होता है उस साइड में रॉड घूम जाता है, बट इसको आपने यहाँ पे एक पॉइंट से इसको आपने पिवोट कर दिया। पिवोट मतलब किसी एक पॉइंट पे उसको ऐसे हैंग कर दिया, ऐसे रोक दिया इसको, तो जिधर मास होगा उधर ऐसे घूम जाएगा, उस साइड में बेंड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जो ये इसमें रोटेशन होगा, जो इसमें बेंडिंग होगी, जो इसमें रोटेशन होगा, वो क्या होगा बेटा, इफ दिस इज डिस्टेंस r1 and it is the distance r2, just make it little smaller so that it will look like the same distance।
then mass is m1, this is mass m2, ठीक है। तो इसमें रोटेशन होगा, रोटेशन कैसे होगा, जैसे इस डायरेक्शन में अगर आपको रोटेशन निकालना होगा मास m1 के लिए, वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो आपको क्या करना होगा, you have to define a quantity to define the rotation of this system, that is m1 into r1, और इधर से रोटेट करेगा तो इसको इसके रोटेशन को बताने के लिए आपको क्वांटिटी बताना पड़ेगा m2 into r2. This quantity is product of mass and the distance of that mass from their origin. This origin you can consider as the center of mass as well. Distance of the particle from their origin is what? Is your moment. Again I am defining that what is moment. Moment is the product of the mass of the body to the distance of that body or that mass from the origin. So this quantity is known as the moment. Moment of first quantity and moment of second quantity, where r1 and r2 is the distances from their origin. Is that clear? अब देखो बेटा, अगर ये मोमेंट क्लॉकवाइज होगा, अगर ये मोमेंट क्लॉकवाइज होगा, we call it positive. We call that this is positive moment. If this moment is clockwise moment, we call it positive moment, and if this moment is anti-clockwise moment, we call it negative moment. Positive moment and negative moment. Okay, तो clockwise के लिए हम क्या करेंगे, पॉजिटिव मोमेंट हो गया, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव मोमेंट हो गया। और इसमें अगर हम टोटल मोमेंट की बात करें, व्हाट इज द टोटल मोमेंट फॉर दिस केस, total moment is m1 r1 plus m2 r2, but look here, m1 r1 is like this and m2 r2 is like this. This is clockwise and this is anti-clockwise, so this become positive, this become negative, so you can write minus of m1 r1 plus m2 r2. This is the total moment of this system. Okay, अब हम बात करेंगे रिलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड मोमेंट, इनके बीच में रिलेशन क्या है, कैसे आप डिफाइन करेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल हुआ, एक पार्टिकल यहाँ पर है, एक यहाँ है, समवेयर लाइक हियर एंड दिस हियर, एंड दिस इज योर सेंटर, दिस इज योर सेंटर। So the distance of this particle 1, that is m1, this is your m2, this is m3, it is your m4. So the distance of the particle from the origin, let's assume this is origin, this is your center of mass. So the distance of particle m1 from the center of mass is r1, and this is your r2. The particle 3 has a distance is r3, and particle 4 has a distance of r4. This is the particles and different distances हो गए। बट अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये रिवॉल्व करेंगे। जब ये बेटा रिवॉल्व करेंगे किसी एक पॉइंट के अराउंड, तो हम क्या करेंगे, दिस इज योर पॉइंट ऑफ रोटेशन, इफ दिस इज अ पॉइंट ऑफ रोटेशन, लेट्स कंसीडर ये रोटेट कर रहे हैं, इसको सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ पर लाई करेंगे, सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ पर लाई करेंगे, दिस इज योर सेंटर ऑफ मास एंड दिस इज योर पॉइंट ऑफ rotation. This is point of rotation and this is center of mass. So let's assume जो ये बहुत सारे मशीन है, m1, m2, m3, m4, सबका जो सेंटर ऑफ मास है, जब सारे मासेस कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, हमने मान लिया ये सारे मासेस कुछ इस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, और ये पॉइंट ऑफ रोटेशन से कितने डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे, कैपिटल r डिस्टेंस पे ये पॉइंट लोकेटेड है। और अगर ये सेंटर ऑफ मास है तो दैट मींस व्हाट, यहाँ पे टोटल मास कंस्ट्रेंट होगा, तो यहाँ पे मास कितने हो जाएंगे बेटा, यहाँ पे आपके मास हो जाएंगे m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। गॉट इट, इज दैट क्लियर? अब यहाँ से आप बोल सकते हो कि दिस इज योर होल सेंटर ऑफ मास। अब आपको पता है कि सेंटर ऑफ मास में ये डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करेंगे, यू कैन राइट इट दैट इंडिविजुअल मोमेंट दैट इज m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3
plus m4r4 is equal to the total moment must be same ना, because अब सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे तो वहाँ पे सारे मास कांस्टेंट है, तो मोमेंट सेम होगा तभी तो वो रोटेशनल मोशन कंप्लीट करेगा, अदरवाइज वो बेंड हो जाएगा इधर से उधर डायरेक्शन में, कोई भी डायरेक्शन में बेंड हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये सारे मोमेंट्स का हम प्लस कर देंगे, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 एंड द कॉमन डिस्टेंस इज व्हाट, कैपिटल R. Capital R is the common distance, which is the distance from the center of mass to the point of rotation. Okay, so यहाँ से you can find out what is R. R is what, m1 r1 plus m2 r2 plus m3 r plus m4 r4 divided by m1 plus m2 plus m3 plus this is the sum of total moment divided by sum of total mass, which what is that, this is the distance of what, distance of center of mass from the origin. आप origin कहीं पर भी assume कर सकते हो, बट center of mass कोई एक point होगा, तो यहाँ से आप point center of mass का distance निकाल सकते हो, कहाँ से, जहाँ से आपने origin को assume किया है, ठीक है, this will be your origin and r is the distance from the center of mass of the origin. ठीक है, ये हो गया बेटे आपने देखा आगे। अब हम बात करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। सो सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, इसीलिए हम क्या करेंगे बेटा, लेट्स टेक अ टू पार्टिकल सिस्टम, वन इज पार्टिकल ए, अनदर इज पार्टिकल बी, दिस इज योर मास, पार्टिकल ए कंटेन मास m1 एंड इसका मास कितना है, अभी इसको हम मान के चलेंगे इट इज अ पॉइंट मास, इसको हम पॉइंट मास में डिफाइन अलग करेंगे। तो इसमें एक मास है m1 है, दूसरा मास m2 है, और इनके हम बीच को ऐसे मिला देते हैं ऐसे। हम मानते हैं कि देखो एक स्ट्रेट लाइन बना, तो सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे कहीं ना कहीं लाई करेगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास मैंने अज्यूम किया कि ये कुछ इस पॉइंट पे, ये कुछ पॉइंट इस पॉइंट पे है, और वो पॉइंट आपका सबसे पहले आप अज्यूम कर लो कि जो पॉइंट A1 है, पॉइंट 2 है, इनके बीच का डिस्टेंस हमने माना दिस इज x, ठीक है, एंड दिस पॉइंट इज योर ओरिजिन O, ठीक है। सो लेट्स अज्यूम ओरिजिन O इज r डिस्टेंस फ्रॉम द पार्टिकल 1 एंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 to O, इट विल बी x minus r, ठीक है। यू कैन राइट हियर r इज distance of the, this O is your center of mass, you can say that this is origin or center of mass, R is the distance of the center of mass of the system from point or particle 1, ओके। तो अगर पार्टिकल 1 से r डिस्टेंस है तो इसका मतलब क्या हुआ, यू अज्यूम दैट पार्टिकल 1 इज एट ओरिजिन, आपने पार्टिकल 1 को ओरिजिन पे मान लिया, तो आपका क्या आ जाएगा बेटा, जब आपने पार्टिकल 1 को ओरिजिन पे अज्यूम कर लिया, यू कैन राइट, अगर ये ओरिजिन पे होगा तो आप क्या लिख सकते हैं, यू कैन राइट r इज इक्वल टू, पहले वाला फार्मूला क्या था, m1 इंटू r1 plus m2 into r2 divided by m1 plus m2, and here m1 into what is the r1 distance, this distance is the distance of origin, the distance of point, the distance of mass from the origin, r1 is the distance of mass from the origin, वही था पिछले फिगर में। तो यहाँ पे देखो बेटा, डिस्टेंस ऑफ मास m1 फ्रॉम द ओरिजिन इज व्हाट, अगर आपने इसको ही ओरिजिन मान लिया है, अगर आपने मास m1 को ही ओरिजिन गेट कर लिया है, तो मास m1 को ही ओरिजिन मान लिया है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इट इज 0, इट विल बी 0, देन द नेक्स्ट इज व्हाट, इट विल बी m2 इनटू व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ मास 2 फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ मास 2 फ्रॉम द ओरिजिन, ये क्या हो जाएगा, इट इज x डिवाइड बाय m1 प्लस m2,
So what you will get? You will get that R is equal to m2 upon m1 plus m2 into x. Is that clear? So this is what you can say that from here you can easily find out. You can say that the center of mass is at a distance r from the origin, and origin is what? Origin is your point. Origin is your the point mass of m1. Origin is at the point mass of m1. ठीक है, तो ये हो गया m2 upon m1 plus m2 into x. Similarly, सेकेंड आप क्या करोगे? इफ पार्टिकल 2 इज एट ओरिजिन, अगर आपने पार्टिकल 2 को ओरिजिन अज्यूम कर लिया तो उस केस में क्या हो जाएगा बेटा? जब आपने पार्टिकल 2 को एज ओरिजिन अज्यूम कर लिया और पार्टिकल 3 को, तो इस केस में हो जाएगा, तो आपने क्या करना है? आपको यहाँ से डिस्टेंस अज्यूम करना है, तो ये यहाँ पे x माना है, ये r है, तो ये x माइनस r है। इस फिगर को आप चेंज करोगे। अब हमने क्या किया? हमने ये बोला पार्टिकल से r डिस्टेंस पे, सेकेंड पार्टिकल से कितने डिस्टेंस पे है? r डिस्टेंस पे है। ये आपका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। अब इसमें आप कैसे लिखोगे? यू कैन राइट r इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा बेटा? देखो m1 into r1 is the distance of the mass from the origin, और origin आपने क्या माना है? 2 माना है, तो 2 से 1 का डिस्टेंस क्या है? x। तो m1 into x plus m2 into r2 is the distance of mass from the origin, तो distance of mass 2 is same as the origin, दोनों सेम है, mass 2 और origin दोनों एक ही पॉइंट पे है। so what will be the distance will be 0 here, and you will get divide by m1 plus m2, and you get the same equation. You get the equation m1 upon m1 plus m2 into, this is the way to find out the center of mass, ठीक है। From here you can say that the center of mass of a system will lie on the same line, will lie on the line joining two particles. So center of mass of a two particle system will lie on the line joining the system of two particles. Got it? यहाँ पे क्वेश्चन है टू पार्टिकल सिस्टम का। क्वेश्चन ये बता कि द HCl मॉलिक्यूल सेपरेट। अब हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या HCl मॉलिक्यूल है आपका, दिस इज योर H एंड दिस इज Cl, ठीक है। सेपरेशन बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ द टू एटम्स इज हाउ मच? 1.27 एंगस्ट्रॉम। इनके बीच का जो सेपरेशन दिया हुआ है ये बेटा 1.27 एंगस्ट्रॉम। The next thing is what? Find location of center of mass. So आपका center of mass इस HCl मॉलिक्यूल का कहाँ पर लाई करेगा ये आपको बताना है। दिया हुआ क्या है? mass of the Cl atom is 35.5 times the heavier than the mass of hydrogen. So if the mass of hydrogen आपने अज्यूम कर लिया कितना? 1 AMU, लेट्स अज्यूम। तो क्लोरीन का क्या हो जाएगा? क्लोरीन का मास it is 35.5 times heavier than this. This means 35.5 AMU is the mass of chlorine atom. Okay, so let's assume, जैसे हमने पहले डेरिवेशंस किए हैं, let's assume your center of mass is at r distance from the hydrogen atom. यहाँ पे लिखो assume center of mass is at r distance from the hydrogen atom, is at the r distance from the hydrogen atom, then you can write r is equal to mass of hydrogen into distance of hydrogen atom from the origin plus mass of chlorine into distance of chlorine atom from the origin divide by mass of hydrogen plus mass of chlorine. So what is mass of hydrogen? This is 1 into what is the distance of hydrogen atom from the origin? आपने origin क्या माना है? Consider, मान लीजिए मैंने लिखा नहीं, consider hydrogen atom
ये ओरिजिन से आप लोग कंसीडर कर लोगे तो डिस्टेंस हो जाएगी कितना 0। ऑलरेडी हाइड्रोजन एटम तो आपका ओरिजिन पे ही लाई कर रहा है। प्लस सेकेंड मास ये हो गया आपका 35.5 एंड डिस्टेंस इज हाउ मच 1.24 एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाय 35.5 plus 1 you will get how much 35.5 divided by 36.5 into 1.24 एंगस्ट्रॉम। इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे नॉट 24 दिस इज 27 ना 27 करेक्ट दिस वन 27 एंगस्ट्रॉम व्हेन यू फर्दर सॉल्व इट यू विल गेट 1.24 एंगस्ट्रॉम 1.24 एंगस्ट्रॉम ऑलमोस्ट मिलेगा। इसका मतलब क्या होगा कि आपका सेंटर ऑफ मास ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पे लाई करेगा 1.24 और 1.27 आपका होल डिस्टेंस है तो सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ पर होगा आपका। ठीक है तो इससे आप ये बोल सकते हो कि आपका सेंटर ऑफ मास क्लोरीन एटम के साइड में ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकल के आता है कि सेंटर ऑफ मास जो होता है हमेशा हैवियर मॉलिक्यूल्स के साइड में डोमिनेट करता है। जो हैवियर मॉलिक्यूल्स होगा उसी के साइड में आपका सेंटर ऑफ मास डोमिनेट करेगा। इस चीज़ को आप याद रखें। ओके तो यू कैन राइट दिस क्वेश्चन एज तो यहाँ से आप सेंटर ऑफ मास क्या लिखोगे योर सेंटर ऑफ मास इज एट 1.24 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम द हाइड्रोजन एटम। अब हम मेनी पार्टिकल सिस्टम के बारे में बात करते हैं। कौन से अभी तक 1 पार्टिकल हुआ 2 पार्टिकल हुआ अब बात करेंगे मेनी पार्टिकल सिस्टम। मेनी पार्टिकल सिस्टम के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसके पहले हम एक थ्योरम करना चाहेंगे व्हाट इज दैट इफ दिस इज योर ओरिजिन सी एंड यहाँ से एक मास आपका यहाँ पर लोकेटेड है विच इज एट r1 डिस्टेंस दिस इज योर m1 दिस इज m2 lie at the r2 distance this is m3 lie at the r3 distance and this is m4 lie at the r4 distance। okay यहाँ से आप r क्या लिखते हो बेटा you can write r is equal to when will be your center of mass you can write m1 r1 plus m2 r2 plus m3 r3 plus m4 r4 divide by m1 plus m2 plus m3 plus r क्या बेटा r is the distance of the center of mass from the origin r is the distance of the center of mass from the origin but अगर आपका जो ओरिजिन है वो खुद सेंटर ऑफ मास पे आ जाए ओरिजिन आपका खुद सेंटर ऑफ मास पे आ जाए दैट मीन्स व्हाट योर r becomes 0 you can write m1 r1 plus m2 r2 plus m3 r3 plus up to so much बहुत सारे पार्टिकल चार ही नहीं बहुत सारे उसमें 4 5 6 7 n पार्टिकल्स डिवाइड बाय m1 plus m2 plus up to so so ये इस साइड में आके 0 हो जाएगा you will get only what you will get m1 r1 plus m2 r2 plus m3 r3 up to so on is equal to 0 और you can write summation of I is equal to 1 to n mi ri is equal to 0 you can say that sum of moment at the center of mass is always sum of moment at the center of mass is always 0। एक प्रॉपर्टी आपको मिली थी क्या मिला था you got that property center of mass always lies on the heavier side ऑफ द एटम। ठीक है हेवियर साइड और दूसरा मिला आपका कि सेंटर ऑफ मास पे सम ऑफ मोमेंट आपका क्या होगा टोटल मास सम ऑफ मोमेंट इज 0। ये थ्योरम है इसका एप्लीकेशन भी आपको कहीं कहीं यूज करना पड़ सकता है।
अब बेटा मेनी पार्टिकल सिस्टम में कैसे कैलकुलेट करेंगे सेंटर ऑफ मास, इसके मेथड्स के बारे में देखते हैं। तो फॉर दैट केस जस्ट टू steps we have to take care of 2 steps. So step 1 is just you have to assume that find out x y z coordinates. आपको सारे पॉइंट्स के फाइंड आउट x y z coordinates of each particle, सभी पार्टिकल के एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम द ऑफ ईच पार्टिकल। एंड उसके बाद हम मानेंगे सेकेंड स्टेप में लेट एक्स सी एम वाई सी एम एंड जेड सी एम इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो ये दोनों स्टेप्स को हमको फॉलो कराना है। तो सबसे पहला जो हम काम करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम होगा उसको हम कन्वर्ट करेंगे सिमेट्रिकल शेप। वी हैव टू कन्वर्ट एवरी सिस्टम ऑफ पार्टिकल इन सिमेट्रिक सिस्टम्स। और उन सिमेट्रिक सिस्टम्स का जो सेंटर ऑफ मास होगा वहाँ पे मानेंगे कि होल मास ऑफ सिमेट्रिक सिस्टम is distributed through center of mass। ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्टेप वी हैव टू फाइंड आउट x c m, नो वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ ईच पार्टिकल फ्रॉम द origin। Okay, and then at last by using the formula you have to find xcm, ycm and zcm। x y z क्या है बेटा? कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। देखो क्या होगा, पहले मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। आपने फॉर्मूला क्या लिखा? xcm क्या है? डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द ओरिजिन। x डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द ओरिजिन, उसको आप लिखेंगे xcm कैन बी रिटन एज m1 x1 प्लस m2 x2 अप टू सो ऑन डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ycm कैन बी रिटन एज m1 y1 प्लस m2 y2 अप टू सो ऑन डिवाइड बाय m1 प्लस। and zcm can be written as m1 z1 m2 z2 up to so on m1 plus। ठीक है, xcm ycm एंड zcm। सो इन तीनों का कंबाइंड कोऑर्डिनेट लिख दो तो वही आपका क्या होगा? कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स चूज एन एग्जांपल। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ। हमारे पास 3 स्फीयर्स हैं। Let me draw it properly. We have 3 points, point 1, 2 and 3। ये 3 पार्टिकल्स हैं, मास m1 m2 m3। ये तीनों पॉइंट्स के आपको क्या निकालना है? यू हैव टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास। इस पॉइंट का सेंटर ऑफ मास निकालना है तो क्या काम करते होता है? इसमें हम सिमेट्रिकल शेप में पहले से कन्वर्ट करते हैं। लेट्स कन्वर्ट दिस इनटू सिमेट्रिकल शेप। तो मैंने सिमेट्रिकल शेप में इसको कन्वर्ट किया। जब मैंने इसको सिमेट्रिकल शेप में कन्वर्ट किया मतलब मैंने इसको एक सर्कल में कन्वर्ट किया। तो जब इसको आपने सर्कल में कन्वर्ट किया तो सारे सर्कल सिमेट्रिक हो गए, सिमेट्रिकल शेप हो गए। अब ये मैंने अज्यूम कर लिया, यू टू अज्यूम दैट द रेडियस ऑफ ईच सर्कल इज r and this is also r and r। The distance between 2 points is what? If this is your m1, this is your m2 and this is your m3। The distance between 2 points m1 and m2 is what? How much? It will be 2r। m2 and m3 it will be 2r and m1 and m3 इसके बीच में भी कितना डिस्टेंस होगा? 2r।
अब आपको सेंटर ऑफ मास यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो आपको इस पॉइंट का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए क्या करना होगा बेटा, जस्ट आपको यहाँ पे देखो, इसको मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट करता हूँ। आई जस्ट हैव टू रिमूव दीज सर्कल्स, तो मैंने ये सर्कल्स को रिमूव कर दिया, ये सर्कल्स को मैंने रिमूव कर दिया। अब क्या हुआ बेटा, आपके पास जो सिस्टम बचा, आपका सिस्टम जो होगा, आपके पास रिमेनिंग सिस्टम हो गया कुछ इस तरह से M1, M2 एंड M3। डिस्टेंस बिटवीन M1 एंड M2 इज 2r, M3 एंड M2 इज 2r, सेम एज M1 एंड M3, इट विल बी आल्सो 2r। ये डिस्टेंस भी अभी कितना होगा, दिस इज आल्सो 2r। ओके, सो अब क्या करना है, वी हैव टू मेक अ ओरिजिन। तो हमने क्या किया, इस पॉइंट को ओरिजिन मान लिया, दिस इज योर ओरिजिन, दिस इज योर y एक्सिस एंड दिस इज योर x एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस एंड दिस विल बी योर y एक्सिस। चलो अच्छा, ये पॉइंट यहाँ तक हम पहुंचे हैं, इसका मिड पॉइंट है। अगर हमको कोऑर्डिनेट लिखना हो तो कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे? कोऑर्डिनेट लिखने के लिए M1 पॉइंट का पहले हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे, जो हमारा सेकंड स्टेप था, राइट द कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो M1 पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 0 0। M2 का कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा, मुझे बताओ। आपने x डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 2r, so here x is equal to 2r. How much is the y? Y is 0 and how much is the z? Since it is lying in a single plane, इसको मैंने बोर्ड पे रिप्रेजेंट कर दिया, that's why it is a plane. So this is the 0, z is also 0. For in case of M3, tell me the coordinates. ये डिस्टेंस कितना होगा बेटा, इसका तो हमको ये M3 का कोऑर्डिनेट बता रहा है। सबसे पहले x कोऑर्डिनेट क्या होगा, हम यहाँ से थे, यहाँ से कुछ इसको इस तरह से डिस्प्लेस करते 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 इस पॉइंट पे पहुँच गए, तो हम यहाँ पर पहुँच गए। तो हाउ मच दिस डिस्टेंस इज r, so x is equal to r. How much is the y? Y is just the height from this point. So यहाँ से इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना मिलेगा आपको बताओ। If this is r, this is 2r, you have to use the Pythagoras theorem. तो Pythagoras theorem यूज करोगे तो क्या होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, देन यू विल गेट द हाइट स्क्वायर। सो 2 का स्क्वायर मींस 4 is 4r square minus 3r square, that will be how much, √3. You will get how much value, you will get the value is √3r. This is √3r and z is 0. So now you have the coordinates of all the points. So you can easily find out the xcm and ycm and zcm. So let's find out how much, what is the xcm. xcm is what, you can write m1 into 0 plus m2 into x2 is what, 2r plus m3 into 0 divided by m1 plus m2 plus m3. So you can write, if all the masses are same, if all the masses are same, m1 is equal to m2 is equal to m3 is equal to m, then you can write m for each places. You can write that m into 2r divided by 3m. It becomes m gets cancelled and it remains 3 here rounding. You will get 2r divided by 3. So xcm is what, 2r divided by 3. ycm क्या मिल जाएगा, m1 into ycm, y is 0 plus m2 into y2 is 0 plus m3 into y3 is how much, under root of 3r divided by 3m. You will get √3m divided by 3m into r, if m1 and m2 and m3 all are the same. So it will cancel out, you will get r by √3. And what will be the zcm, it will be 0. So what are the coordinates of the center of mass? It is 2r by 3, r by √3 and 0. It is 2r by 3 and r by √3 and 0 distance from the origin. And your origin is at point M1. Your origin is at point M1. This is the way to find out the center of mass for the many particle system. Let's take another example. It will more clear. It will clear you more. Let's see how. अब हमारे पास ये एक लेमिनेट सिस्टम है
जिसका आपको सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है। दिस इज आवर लैमिनेट सिस्टम फॉर विच वी हैव टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास। तो कैसे निकालेंगे? फर्स्ट स्टेप जो हमारा होगा, वी हैव टू कन्वर्ट दिस लैमिनेट सिस्टम इनटू अ सिमेट्रिकल शेप। इसको सिमेट्रिकल शेप में कन्वर्ट कर दो। जस्ट आई जस्ट मेक इट 3 स्क्वायर्स फ्रॉम देयर। 3 स्क्वायर्स बना दिया। ये डिस्टेंस है 2l 2l l l l l l, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 3 स्क्वायर बना दिया। 3 स्क्वायर के जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ लाई करेंगे बेटा? लाई हियर। इस स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ लाई करेगा, इसका यहाँ पे। ओके, सो जस्ट मैच दिस पॉइंट। So the center of mass of these 3 squares is here, here and here. Let's assume the center of mass is at the, हमने मान लिया किसी। उसके बाद हम क्या चूज करेंगे बेटा? सेंटर ऑफ मास हमको निकालना है। सेंटर ऑफ मास इज समवेयर हियर। So let's assume your center of mass is at x centimeter, x cm, y cm and z cm distance from the origin. Distance from the origin. Origin is what? Let's consider one corner of the laminate as the origin. You have to consider one corner of the laminate is as the origin. जब आप इसको as the origin कंसीडर कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा? यहाँ पे this is your origin, means it is 0 0 0. So what is the distance of this particle? देखो यहाँ पे ध्यान से, इसका क्या हो जाएगा बेटा? x is somewhere here, it is l by 2 and how much the y is? Y is also l by 2 and z is 0. ये कोऑर्डिनेट मिल गया आपको किस पॉइंट का? 0 फ्रॉम द ओरिजिन। अब इस पॉइंट का निकालते हैं। हाउ मच दिस इज टोटल l and l by 2 becomes how much? l plus l by 2, 3l by 2 and how much the y is l by 2 and z is 0. This is the coordinate for this particle. Consider as this point as the origin. Okay, why? Because this distance is l by 2, this is l by 2, this much is l by 2, this much is l by 2. ठीक है। Now let's talk about this point. इस point का center of mass क्या होगा? Sorry, इस point का coordinate क्या होगा origin से? It is again what is the l? X is l by 2, y is 3l by 2 and z is 0. So z 0 means z cm is always 0. It's again a plane. So now find out xcm. Xcm is how much? If mass is what? If the mass is m. सब पे कितने masses हैं? इस पर भी mass m है, इस पर भी mass m है, इस पर भी mass m है. Since this is symmetrical, तो mass भी equally distribute होंगे. So you can write m into x1, l by 2 plus m into x2, 3l by 2 plus m into x3, l by 2, divide by m plus m plus m. How much you will get? You will get, so means m l by 2, 3l by 2, l by 2. It means what? 5l by 2 divided by 3m. M and this cancel out. You will get 5 by 6l. Got it? The next YCM is what? It is m into l by 2 plus m into y2. This is again l by 2 plus m into y3. It is 3l by 2. Divide by m plus m plus m. It will again become what? It again becomes 5 into m into 5l by 2 divided by 3m gets cancelled out. You will get 5 by 6l. XCM and YCM and ZCM is what?
So this is the coordinates for the center of mass. Center of mass is lie somewhere 5/6L. कुछ यहाँ पर लाई करेगा आपका center of mass 5/6L from the x origin and 5/6L distance from the y axis. This is lie somewhere here. Okay. So this is the way to solve the problem. सेम प्रॉब्लम आपका रिपीट किया गया था मीन्स 2020 का पास्ट ईयर जो पेपर है उसमें आप क्वेश्चन उठा के देखोगे तो आपका सेम प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जस्ट इसको रिवर्स करके उन्होंने आपसे पूछा हुआ है. ठीक है. सो आई होप आप इजीली इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे. कुछ एक्स्ट्रा टाइप के भी प्रॉब्लम आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं. जैसे ये क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, ये आपसे पूछा गया है IAMCET एग्जाम 2001. इस क्वेश्चन है कंपटीशन एग्जाम का क्वेश्चन मैंने चूज किया है. इसमें बेटा आपका क्वेश्चन क्या है 200 ग्राम एंड 500 ग्राम पॉजिटिव वेलोसिटीज 10 I cap मीटर पर सेकंड एंड 3 I cap plus 5 J मीटर पर सेकंड रिस्पेक्टिवली. द वेलोसिटी ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास इज. तो इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आपको बताना है. तो दो मासेस दिया हुआ है. यू हैव मास m1 is 200 ग्राम, मास m2 is how much 500 ग्राम and velocity of particle 1 is 10 I cap meter per second and velocity of particle 2 is 3 I cap plus 5 J cap meter per second. Okay, then you have to find out the velocity of the center of mass. So velocity for the center of mass, जैसे आपने डिस्टेंस के लिए फार्मूला बनाया था उसी फार्मूले को आपके t के रिस्पेक्ट में कर देना है और आपको वो फार्मूला कन्वर्ट हो जाएगा किसके लिए वेलोसिटी के लिए. और आपको जो कन्वर्ट होकर फार्मूला मिलेगा वो ये फार्मूला मिलेगा VCM वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज व्हाट m1 into v1 plus m2 into v2 divided by m1 plus m2. ये फार्मूला आपको मिल जाएगा. लेट्स डू द solution. m1 is how much 200 gram into v1 is 10 I cap okay plus m2. बेटा देखो मैंने ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट नहीं किया. उसका रीजन ये है कि ऊपर भी ग्राम है नीचे भी ग्राम है तो ग्राम वाली यूनिट कैंसिल हो जाएगी. तो देयर इज नो नीड टू कन्वर्ट इट. यू विल गेट द सेम आंसर. अदरवाइज अभी आपको अगर किलोग्राम में भी कन्वर्ट करोगे तो आपको सेम ही आंसर मिलेगा बिकॉज ऊपर नीचे यूनिट्स कैंसिल हो जाएगा. तो यूनिट की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी. तो यहाँ पे आपका ये हो गया प्लस 500 इंटू 3 I cap प्लस 5 J cap डिवाइड बाई 200 प्लस 5. कितना आएगा बेटा यहाँ पे इसको आप सॉल्व करोगे तो 2000 डिवाइड बाई 2000 I cap डिवाइड बाई 700 प्लस 5 3 कितना हो जाएगा 1500 I cap डिवाइड बाई 700 प्लस 2500 J cap डिवाइड बाई 700. ये आपका हो जाएगा 25 20 प्लस 15 3500 डिवाइड बाई 700 into I cap plus 2500 divided by 700 into J cap. This will cancel out. You will get 7 5 you will get 5 I cap plus 25 by 7 J cap meter per second. This is the velocity of center mass of combined system. Okay, so which option is right? Tell me. Option C. This is your right answer. अब बेटा थोड़ा एक टाइप का क्वेश्चन और देखते हैं सेंटर ऑफ मास के केस में. The question is a rod of mass m and length small l is made to stand at an angle 60 degree with the vertical. At an angle 60 degree with the vertical. Potential energy of the rod in this position is. आपको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है बट यहाँ पे आपको सेंटर ऑफ मास को यूटिलाइज करना पड़ेगा. देखो कैसे करेंगे. क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक रॉड है
जिसका मास है स्मॉल m, और ये रॉड क्या कर रही है बेटा, इट इज स्टैंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल, तो वर्टिकल के साथ में 60 डिग्री एंगल पे ये स्टैंड ऐसे रखी हुई है। ठीक है, अब आपको बताना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रॉड इन दिस पोजीशन, इस पोजीशन पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। ओके, सो अल्टीमेटली ये पोजीशन हमें ड्रॉ कर दिया। तो मुझे बताओ, अगर ये एम डिस्टेंस है, ये हो गया आपका 90 डिग्री, ये एंगल कितना का बेटा 30 डिग्री, एंड ये आपका लेंथ कितना है L। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, आपको पता है सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है, L/2 डिस्टेंस। जो रॉड होता है, रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है, उसके हाफ पॉइंट L/2 डिस्टेंस पे। अगर सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई कर रहा है तो होल मास आपका कहाँ कांस्टेंट होगा, सारा मास आपका इस पॉइंट पे कांस्टेंट होगा। आपका टोटल मास आपका किधर कांस्टेंट हो जाएगा, m पे। तो यहाँ से आपका सारा मास इस तरह से कांस्टेंट होता है, दैट इज mg। तो आपका जो फॉर्मूला नया फिगर बनेगा, दिस इज योर सेंटर ऑफ मास पॉइंट, यहाँ से मास नीचे की तरफ काम कर रहा है, दिस इज एंगल 30 डिग्री। ठीक है, दिस इज द एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड दिस इज L/2 डिस्टेंस, L/2 डिस्टेंस फ्रॉम हियर। अच्छा, अगर टोटल हाइट इसकी कितना दी हुई है बेटा, h, टोटल हाइट h, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, हाउ मच विल बी दिस हाइट, टेल मी हाउ मच विल बी दिस हाइट विद दिस फार्मूला, बताओ। L/2 is 30 डिग्री, ये हाइट कितनी होगी, you can use the formula sin 30 degree is how much, sin 30 degree is how much, height upon base। इस ट्रायंगल में height upon base इस तरह, अगर ये height x है, ये हाइट x है, तो आप क्या लिखोगे, x डिवाइड बाय परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सही होता है ना साइन, परपेंडिकुलर x अपॉन हाइपोटेन्यूज L/2, so you will get x is equal to L/2 sin 30 डिग्री, x is equal to L/2 sin 30 डिग्री। तो आपको L/2 sin 30 डिग्री ये डिस्टेंस मिल गया, दिस इज L/2 sin 30 डिग्री। तो आपका जो सेंटर ऑफ मास होगा L/2 sin 30 डिग्री डिस्टेंस पे लाई करेगा। इतने डिस्टेंस कहाँ से, L/2 sin 30 डिग्री, हाइट कहाँ से, बॉटम से, बेस से, इतना डिस्टेंस पे आपका सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी उस पॉइंट पे कैसे निकालोगे, तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बेटा, इट इज mgh। तो इस केस में था जब इतनी हाइट पूरी थी h, बट अब हम सेंटर ऑफ मास से पूरी बात करेंगे, तो वहाँ पे क्या करेंगे, mgh की जगह पे आप क्या लिखोगे बेटा, अब हाइट आपकी चेंज हो जा रही है L/2 sin 30 डिग्री, L/2 sin 30 डिग्री, और आपको यहाँ से मिल जाएगा mg into L/2 और sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, यही होता है, इट बिकम्स mgL/4। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रॉड एट द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा इस पोजीशन पे, mgL/4। तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी ये निकल के आ जाएगी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं।